Hello, good morning, everybody. Can you listen me? Assalamualaikum sir. Well, Assalamualaikum sir. Assalamualaikum sir. well, okay. So today we will continue with our discussion on mass spectrometry. Okay. As we learned that mass spectrometry separates the molecules on the basis of their uh, mass to charge ratio. Today we will define how we can determine the resolution of any mass spectrometer. So the resolution formula in the mass spectrometry is very simple. The most simple we can say that resolution is equal to the mass of the ion and divided by the difference in the masses of the two ions. Because as we have learned already in case of chromatography, that resolution is always between two components. So in case of mass spectrometer, we will be measuring mass to charge ratio. That means the difference in mass between the two species, that is known as delta M. So as an example, a mass spectrometer with a resolution of 1000. For example, if we say that if this mass spectrometer has a resolution of 1000, what does it mean? It means that it can resolve an ion with a mass to charge ratio of 100 from an ion with a mass to charge ratio of 100.1. So apply the formula, you will get this result that there are two masses. The mass of one ion is 100. Let me pick up the pen. The mass of one ion is 100,
and the mass of the other ion is 100.1. So how we will calculate the resolution? Very simple. Mass of the ion, that is 100, divided by difference in mass. What is the difference in mass? That is 100.1 minus 100. That means 0.1. So this is your resolution. So you can find out the answer is very simple, 1000. Okay. Similarly, if we say that the resolution of a mass spectrometer is 10,000, so what does it mean? What will be the masses of the two ions which can be resolved by a mass spectrometer having resolution of 10,000? तो 10,000 के लिए कैलकुलेट करें. तो एग्जाम्पल इज के अगर एक का मास 100 है तो दूसरे आयन का कितना होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? 1000 का डिफरेंस होगा. है 1000 का डिफरेंस होगा. नो, 10,000 रेजोल्यूशन है, ठीक है? तो 10,000 है. एक का मास 100 है, तो व्हाट शुड बी द मास ऑफ द अदर आयन which can be resolved by this mass spectrometer having 10,000? तो वो दूसरा मास जो होगा that will be 100 point, बोले 0.0 times 01. देखें, ये पहला जो हमने फाइंड आउट किया, it was the resolution between 100 and 100.1. ओके, तो डिफरेंस कितना था? 0.1 मास का. तो ये 100 डिवाइडेड बाय 0.1. अब हम कह रहे हैं कि 10,000 अगर रेजोल्यूशन है तो फिर वो कौन कौन से मासेस को सेपरेट करेगा? तो वो सेपरेट करेगा जिसका 0.01 का फर्क होगा. तो ये देखें, 0.01 से आप इसको डिवाइड करें, 100 डिवाइडेड बाय 0.01, क्या आंसर आया? 10,000. 10,000. वेरी इजी. तो अब आप बताएं कि 100,000 अगर रेजोल्यूशन है किसी मास स्पेक्ट्रोमीटर की, तो कौन कौन से मासेस को वो सेपरेट कर सकते? कितने डिफरेंस के मासेस को सेपरेट करें? जी सर 0.001. यस, वेरी गुड. तो अब आपने लर्न कर लिया हाउ टू कैलकुलेट द रेजोल्यूशन इन a mass spectrometer. Okay, right. So we move forward. So this is the block diagram of mass spectrometer. तो इसको हम फिर एक दफा देखते हैं कि क्या क्या होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर. तो सबसे पहला है कि सैंपल आपने इंट्रोड्यूस करना. तो जिसमें जाता है सैंपल, उसको हम कहते हैं सैंपल इनलेट. उसके अंदर आप इंजेक्ट करते हैं आपका सॉल्यूशन या गैस, व्हाटएवर. सो आपको ये पता होना चाहिए कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में ऑल दी 3 फेजेस, यानी solids, liquid and gases can be analyzed. Okay, अगर आपका सैंपल सॉल्यूशन है तो इसमें इंजेक्ट करेंगे. अगर आपका गैस है तो अगेन इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे. अगर आपका सॉलिड है तो फिर क्या करें? तो सॉलिड में एक प्रोब होता है स्पैचुला टाइप, उसमें आप ये सैंपल आप रख के उस स्पैचुला को इसके अंदर, इनलेट के अंदर आप पुश कर देते हैं. तो इसको कहते हैं प्रोब.
तो इसके ऊपर आप सैंपल रख के इनलेट के अंदर आपने उसको इंसर्ट कर दिया तो आपका सैंपल जो है वो लोड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, सैंपल को आपने इफ यू रिकॉल के व्हाट आर द स्टेप्स इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, कि आपका सैंपल है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, उसको आपने क्या करना है बोलें, क्या करना है उसको? अगर लिक्विड है, सॉलिड है, उसको क्या करना पड़ेगा हमें? एनीबॉडी? सर एटमाइज करना जब वन पड़ेगा। नहीं, एटम नहीं, हाँ तो गैसेस फॉर्म से करना पड़ता है। इन मास स्पेक्ट्रोमीटर आप एटम्स को भी एनालाइज कर सकते हैं, एलिमेंटल फॉर्म्स, और मॉलिक्यूल्स को भी कर सकते हैं। सिर्फ उसको सैंपल को आप किस फिजिकल स्टेट में लेके जाएंगे? फिर गैस फॉर्म में, वोलेटाइल फॉर्म में लेके जाते हैं। राइट, उसको आपने वोलेटिलाइज करना है, एवापोरेट करना है। ओके, वोलेटिलाइज, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। तो उसको गैस फेज में लेके जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनलेट के अंदर क्या काम हो रहा होगा? नंबर वन, सैंपल इज लोडेड और उसके अंदर से हीटर लगा हुआ है, वो हीट करके उसको वोलेटिलाइज करेगा। तो देन सैंपल विल बी पुश्ड इनटू द आयन सोर्स, इसको कहते हैं आयन सोर्स। ओके, तो आयन सोर्स के अंदर, तो आयन सोर्स के अंदर क्या होगा? आयनाइजेशन होगी, कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं उनकी आयनाइजेशन होगी, क्योंकि आयनाइजेशन इज प्री रेक्विजिट कि आयन को हमने जब मूव कराना है तो दे मस्ट बी चार्ज। तो वो कैसे हम करते हैं? हाउ डू वी आयनाइज द मॉलिक्यूल्स और एटम्स? ये लास्ट डिस्कशन में हमने लर्न किया था। एनीबॉडी कैन टेल मी? सर जो इलेक्ट्रॉन गन है वो स्ट्राइक करेगी तो उससे तो यस, आयन सोर्स के अंदर अगर ये देखें, आयनाइजेशन जो है ना वो तीन किस्म की है मेजर, वैसे तो बहुत सारी इसकी किस्में हैं आयनाइजेशन की। तो वन ऑफ देम जो सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गन होती है। तो इलेक्ट्रॉन गन इधर आप फर्ज किया यहाँ आपने वो फिलामेंट रखा हुआ है, तो वो एक फिलामेंट होता है जिसको आप हीट कर इलेक्ट्रिकली एक्साइट करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं ऐसे। तो अब इसके अंदर यहाँ रास्ते में जितने आपके मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे एंड दे विल गेट आयनाइज्ड। फिर उनको आपने इधर मूव करना है, तो उसके लिए आपको वो प्लेट्स चाहिए। आप नेगेटिव प्लेट्स भी यूज कर सकते हैं दोनों तरफ, और पॉजिटिव प्लेट्स भी, क्योंकि अगर आप नेगेटिव प्लेट्स रखते हैं तो यहाँ से चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल, वो आयन निकल रहे हैं, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, तो क्या होगा कि अगर नेगेटिव आयन है तो ये नेगेटिव, ये जो आयन है, ये प्लेट है, ये उसको रिपेल करेगी, ये भी रिपेल करेगी, तो दोनों रिपेल करेंगे तो व्हाट विल हैपन? जी बोले, ये दोनों रिपेल करेंगे ऐसे। ये जो आयन अगर नेगेटिवली चार्ज आयन है यहाँ पे, तो रिपेल करेंगे तो वो दरमियान में से ऐसे शूट कर जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर ये प्लेट्स आपने पॉजिटिव रखी हैं तो फिर क्या होगा कि ऊपर वाली प्लेट अपनी तरफ आयन को खींचेगी, नीचे वाली अपनी तरफ, अगेन आयन जो है वो सेंटर में रहेगा। तो यहाँ आप कोई भी जो है प्लेट्स, इनको आप एक्सट्रैक्टर कहते हैं, फिर इसके बाद इसी तरह और प्लेट्स लगा दें, वो एक्सेलरेट, वो स्पीड को बढ़ाती जाएंगी, जितनी आप लगाते जाएंगे उनकी स्पीड बढ़ती। उसके बाद ये आपका आयनाइजर है, एनालाइजर है। तो एनालाइजर में क्या होगा? फ्री फॉल, ये फ्रीली इसके अंदर जो आपके आयन्स हैं वो फ्री फॉल होगा, वो प्रोजेक्टाइल जो मोशन है लाइक दिस। ओके, इस तरह से फॉलो करेंगे। तो वो
आयन जो है वो 1 by 1 फिर ये कलेक्टर्स जो हैं ये कप टाइप कलेक्टर्स होते हैं इस तरह के मेटल के बने हुए, इनको कहते हैं फैराडे कप। तो इसके अंदर आयन जो है वो इस तरह गिरते जाएंगे लाइक दिस। तो जब आयन गिरेंगे, ये भी मेटल के होते हैं, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करना शुरू कर देंगे, वो नीचे की तरफ फ्लो करेंगे, तो आगे इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो उसमें करंट जो है वो आपके इंस्ट्रूमेंट पे करंट जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने आयन्स गिर रहे हैं। जितने ज्यादा आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना करंट हाई प्रोड्यूस होगा यहाँ, तो वो आपकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होगी, जिसको हम अबंडेंस कहते हैं, रिलेटिव अबंडेंस, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होती चली जाएगी। ओके, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब एनालाइजर जो है, ये इसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एनालाइजर खाली एक पाइप भी हो सकता है जिसके अंदर आयन जो है फ्रीली फॉल करें। तो इसकी रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए आप यहाँ मैग्नेट भी लगा सकते हैं। तो वो मैग्नेटिक सेक्टर होता है, वो सबसे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है। तो लेट मी क्लीन दिस, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो इस तरह का हमारे पास जो फाइनल प्रिंट आउट आएगा मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, वो इस तरह का प्रिंट आउट होगा। ओके, तो लेट मी हैव द माउस सेशन। यस, ओके, तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट किया वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास स्पेक्ट्रम है, तो इसका किस तरह का पैटर्न आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पहले आप देखें कि कौन कौन से फ्रैगमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल है। ये CO2 हम इधर लिखते हैं, ठीक है। तो CO2 का स्ट्रक्चर आपको पता है कि ये इस तरह होगा, लीनियर स्ट्रक्चर। ओके, तो अब अगर फर्ज किया यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो टोटल मास पहले आप देख लें इसका कितना है, बताइए। नूर फातिमा, आप बताइए कि व्हाट विल बी द मास ऑफ टोटल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हेलो, एनीबॉडी? 44. 44. ओके, तो 44 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा? CO2 प्लस, ये लिखा हुआ है CO2 प्लस। ओके, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके मास पे क्या फर्क पड़ेगा जी? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। यस, तो इसका मतलब मास उसका इट विल रिमेन द सेम 44। तो ये देखें 44 पे पीक आएगी किस चीज की? इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन, M प्लस लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं M प्लस, CO2 प्लस, दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर आयन पीक। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक कहाँ से जनरेट होती है? कि जब मॉलिक्यूल टूटता नहीं है, एज ए होल रहता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अच्छा, अब अगर मॉलिक्यूल टूटता है तो उसके क्या ऑप्शन हैं? कि फर्ज किया ये एक अलग होती है ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की एक पीक आएगी। ऑक्सीजन का कितना मास है जी? 16. तो ये देखें 16 के ऊपर ये आपको पीक नजर आ रही है। ये देखें, ये 16 के ऊपर आपको, ये 15 है, उसके बाद 16 ये, तो ये O प्लस
तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें ये सारे जो है वो आयनिक फॉर्म में होंगे। ओके, अच्छा, तो बाकी क्या बचा? ये तो O की होगी, बाकी बचा ये C और O। इसका कितना मास होगा C और O का? 28। 28। तो इस पे भी प्लस चार्ज होगा, ये देखें, ये CO का 28 पे PP का ये। ओके, तो और क्या पॉसिबिलिटी है कि ये वाला बॉन्ड भी टूट जाए, ये वाला, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएं, तो फिर क्या होगा? फिर ऑक्सीजन की पीक भी आएगी, क्योंकि 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन की पीक 16 पे आएगी। और बाकी क्या बचा? ये कार्बन 12, ये देख, उसकी भी पीक आएगी। तो ये सारे जितने पॉसिबिलिटीज हैं फ्रेगमेंटेशन की, उस तमाम फ्रेगमेंट्स की जो है वो पीक्स जो है वो आपको नजर आएंगी। तो दिस इज हाउ वी कैन इंटरप्रेट द मास स्पेक्ट्रम। तो अब आप बताइएगा कि इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर आयन पीक। जब भी किसी मास स्पेक्ट्रम को इंटरप्रेट करना है तो मॉलिक्यूलर आयन पीक देखनी पड़ेगी। ओके, तो मॉलिक्यूलर आयन पीक जो होती है उसके अब जो आयनाइजेशन मोड है वो डिपेंड करता है। यानी आयनाइजेशन जो है वो 3 तरह की होती है। पहले जो है वो है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, नंबर 1, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट EI। ओके, तो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट जो है ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। तो इसकी इतनी पावर होती है कि ये मॉलिक्यूल को टोटली फ्रेगमेंटेशन उसकी कर देता है, जिस तरह ये अभी हमने CO2 का देखा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मॉलिक्यूलर आयन जो है वो कम होंगे, मॉलिक्यूल ज्यादा टूट फूट का शिकार हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन पीक ज्यादा वाजे हो तो फिर हमें सॉफ्टवेयर टेक्निक यूज करती है। वो दूसरी है, उसका नाम है, किसी को पता है क्या है? व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन फॉर आयनाइजेशन? वो कहलाती है केमिकल आयनाइजेशन। ठीक है, तो केमिकल आयनाइजेशन क्या होती है कि आप एक ऐसी कोई इनर्ट गैस ले लेते हैं जिसमें मीथेन भी हो सकती है। तो मीथेन गैस को आप इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट से आयनाइज करें पहले, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका टकराव करेंगे हम ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ। अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है ये जो आयन, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, CO2 से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दे। ये प्रोसेस जो है, यानी पहले आप एक इनर्ट गैस लें, उसको आयनाइज करें, फिर उसको टकराएं, कोलाइड करें विथ योर मॉलिक्यूल जो एनालाइट है, तो दिस इज नोन एज केमिकल आयनाइजेशन। ओके, तो ये सेकेंडरी आयन बनेगा। प्राइमरी आयन आपका ये होगा जो एक कोई गैस है, केमिकल गैस, तो उसको आप पहले आयनाइज करते हैं, ये प्राइमरी आयन बन जाएंगे। तो ये फिर इंटर्न जो है वो आपके एनालाइट को वो कर देगा आयनाइज। दिस इज नोन एज केमिकल आयनाइजेशन। तो केमिकल आयनाइजेशन इज सॉफ्टवेयर टेक्निक। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें मॉलिक्यूल की टूट फूट जो है, ब्रेक डाउन जो है वो कम हो जाएगी एज कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन। तो एज ए रिजल्ट मॉलिक्यूलर आयन पीक बड़ी नजर आएगी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट में मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है उसके चांसेस कम होते हैं, वो छोटी हो जाती है। तो फिर स्ट्रेटेजी ये होती है कि फर्ज किया अगर किसी मॉलिक्यूल की आपको मॉलिक्यूलर आयन पीक नजर नहीं आ रही, तो आप यू स्विच ओवर टू केमिकल आयनाइजेशन, तो उससे फिर आपको वो नजर आना शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर जो स्ट्रेटेजी होती है कि हाउ टू अचीव गुड मास स्पेक्ट्रम, और उससे हम जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अब ये जो मास स्पेक्ट्रम आपको ये दिया गया है, यहाँ से अगर हम आपको कहें
कि फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल जिसका कि ये मास स्पेक्ट्रम है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या है, उससे आपको मोलर मास का अंदाजा हो गया। तो मोलर मास से आपको पता चल गया कि ये मॉलिक्यूल का क्या टोटल। फिर उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं उनके मासेस देखें। तो इन सब को अगर इंफॉर्मेशन को आप कंबाइन करें तो आप यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, कि उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से बांध टूटता है। तो इनको जब आप इकट्ठा करेंगे तो इसकी मैं मिसाल ऐसे ही देता होता हूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर की। मसलन अगर आपके पास चेयर है तो चेयर को आप उसकी टांगें अलग कर दें, सीट अलग कर दें, बैक उसकी अलग कर दें, तो वो एक जगह पे रख दें। तो आप किसी को कहें कि ये बताएं ये क्या चीज़ है, तो कैसे आप अंदाजा लगाएंगे कि ये क्या चीज़ थी? जी बोलें somebody। जी हेलो, कैन somebody respond? सर उसके पीसेस को जोड़ के देखेंगे क्या शेप बन हाँ, रही है। आप ज़हन के अंदर वो आपके सामने वो रखे हुए हैं, टांगे अलग हैं, चेयर उसके बाजू अलग हैं, उसके सीट अलग है। तो आप उसको देख के अपने ज़हन में क्या करेंगे, उन तमाम पीसेस को जोड़ेंगे। तो जोड़ने से आपका वो पूरा स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा, आपके ज़हन में पिक्चर बन जाएगी कि ये फलां चीज़ है। तो एग्जैक्टली यही तरीका है मास स्पेक्ट्रोमीटर को इंटरप्रेट करने का, कि आप फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ें और उसकी पिक्चर बना लें कि ये क्या स्ट्रक्चर होगा। तो इसी एनालॉजी से आप यू कैन इजीली लर्न के हाउ टू इंटरप्रेट योर मास स्पेक्ट्रम। सो लेट मी क्लीन दिस अगेन एंड वी मूव फॉरवर्ड। ओके, तो ये अब हम फर्दर एक दो एग्जांपल लेते हैं। ये ईथर है और ये मिथाइल अल्कोहल, ये दो डिफरेंट इनका। अब इन दोनों का आप देखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। डाइमिथाइल ईथर का क्या फार्मूला है? ये, और मिथाइल अल्कोहल का, सॉरी इथाइल अल्कोहल। ये मिथाइल का है तो, लेकिन हम एग्जांपल लेंगे मिथाइल अल्कोहल की। ये मिथाइल अल्कोहल का। अब आप देखें इन दोनों का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है या डिफरेंट है? जी, एनीबॉडी अदर देन तनवीर, कोई और नहीं बोल सकता? हेलो सेम फॉर्मूला सर से पता सेम नहीं सर, सेम होगा Same शायद, फिर है डिफरेंट सर। होगा। सेम Same होगा है ना? आप दोनों देखें ना, काउंट करें ना नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ H और O सेम है और C भी सेम है, तो सेम होगा। सेम सेम है, होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। तो अब हम देखते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर हाउ इट विल डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। तो अब आप देखें कि जब ये पहले हम ईथर का ले लेते हैं, तो जब यहाँ से बांड तोड़ें, ठीक है, फिर कौन कौन सी पीक? सबसे पहले मॉलिक्यूलर आयन पीक आपको नजर आएगी, वो तो दोनों की एक जैसी होगी, ठीक होगी बात। तो अब आप ब्रेक करें इसको, यहां से ब्रेक करें तो कौन सी पीक आनी चाहिए बताइए? शाबाश, CH3 की आनी चाहिए, और ये रिमेनिंग पार्ट जो है इसकी। तो कौन कौन सी आएंगी बोलें, कितने मास पे आएगी? CH3 की का क्या मास होगा? हेलो, 15 15 15 थी। 15, वेरी गुड। तो 15 पे आएगा, और कहां पे आएगी वो? CH3O का। अब ये बंद होने वाला, थोड़ा टाइम रह गया, तो जल्दी से बताएं जी, बोलें। ये देखें 15 इसका प्लस 16 कितना हो गया? 31।
तो 31 पे ये आपको पीक नजर आ रही है। ओके, ये छोटी सी आपको नजर आ रही है, और ये 15 पे ये आपको नजर आ गई। ओके, अच्छा, अब इन दोनों में फर्क, इसमें भी CH3 है। ओके, अब दोनों में फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि ये बॉन्ड इथाइल अल्कोहल का यहां से टूटेगा तो 17 पे एक पीक बननी चाहिए, जो कि ईथर में नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास स्पेक्ट्रोमीटर कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, कि जिसमें 17 के ऊपर पीक आएगी तो ये जिस तरह ये 17 मिथाइल अल्कोहल में भी आएगी, इथाइल अल्कोहल में भी आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास स्पेक्ट्रोमीटर कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल अल्कोहल एंड ईथर। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन इंटरप्रेट। तो अब इसी तरह ये मेथनॉल का है, ये आप इंटरप्रेट कर सकते हैं आसानी से, कि इसमें एक 17 पे आएगी, एक 15 पे आएगी। इस तरह से ये डिफरेंट जितने बॉन्ड है उतने टूटेंगे, तो ये आपकी वो उतनी ही पीक आ जाती है। ओके, तो अब आपको अगर असाइनमेंट आपने पिछली भी नहीं की किसी ने, तो मुझे बहुत अफसोस है कि आप इतने गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं कि आपने वो लैब जो प्रिंट आउट है किसी ने भी उसकी कोई भी कॉपी नहीं रखी। वेरी स्ट्रेंज। ओके, तो अभी अगर किसी के पास है तो वो शेयर कर ले सबके साथ, वो असाइनमेंट मुकम्मल करें, और फिर सेकंड असाइनमेंट आपको देंगे कोई। ओके, सर वो फोटोकॉपियर को दी हुई है, तो वो आज अगर कैंपस जाना हुआ तो पकड़ लेंगे, तो वहां पे फोटोकॉपी करवा के स्कैन करके बेटा सबको दे फोटो देंगे। कॉपी की जरूरत ही नहीं, आपके पास हर वक्त मोबाइल फोन होते हैं। मैं हमेशा आपको एम्फसाइज करता हूँ कि आप उसकी पिक्चर ले लिया करें, तो आप क्यों डिपेंडेंट हैं फोटो कॉपियर के ऊपर? तो एनीवे वो आप अरेंज करें और जल्दी से वो असाइनमेंट मुकम्मल करें। तो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर के मुताल्लिक ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। ये आयनाइजेशन चैम्बर जो है ये उसकी डिटेल कि वो कहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर है, ये फिलामेंट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होकर ऊपर को जा रहे हैं ऐसे। तो ऊपर कलेक्टर लगा हुआ है, पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन फिर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दरमियान में आएंगे, इनको स्ट्राइक करेंगे तो वो आयनाइजेशन हो जाएगी। तो दिस इज योर आयनाइजेशन चैम्बर की पिक्चर। ये जो मैग्नेट है ये उसका अंदर का वो ये देखें आयन जिसमें एंटर होते हैं, और इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये फॉलो करते हैं, और ये जाके फॉल करते हैं। ये कप्स जो होते हैं जिसको आयन कलेक्टर कहते हैं, ये फैराडे कप कहलाते हैं। फैराडे वाज ए साइंटिस्ट। ये फैराडे साइंटिस्ट की आप बायोग्राफी पढ़ें। ये स्कूल लीवर था, तो ही टर्न्ड आउट टू बी ए ग्रेट साइंटिस्ट जिसने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज की। फैराडे लॉज हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैराडे के नाम से हैं। तो ये फैराडे कप्स कहलाते हैं जो आयन को कलेक्ट करते हैं। उसके अंदर जो ही वो आयन फॉल करता है तो वो आयन होता है वो मेटल के इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, तो इस तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाती है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ करंट जनरेट होगी, तो करंट जो है दैट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू ए सिग्नल जो कि आपको कंप्यूटर जो है वो देता है। तो अब जो एनालाइजर है, एक तो ये हमने मैग्नेट वाला लर्न किया, दूसरा ये है क्वाड्रूपोल। ये उसी तरह ये सारी चीजें आयन सोर्स और वो बाकी सारी चीजें वैसी हैं। यहाँ पे आप फोकस करें, ये मैग्नेट की बजाय यहाँ पे ये 4 पोल्स हैं, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। तो इन पोल को ऐसे ही जिस तरह ये रखे हुए हैं पैरेलल रखा जाता है, तो आयन जो है वो इनके दरमियान से गुजरते हैं। ये आप रेड एरो देखें, ये आयन जो है ये गुजर रहे हैं। ओके, तो अब ये पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस ये देखें,
कि इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ इस तरह इधर नेगेटिव है इधर नेगेटिव है, तो आयन जो है वो दरमियान में से जो है वो पास करेंगे। तो जो आयन इसमें से आपने पास करवाने होंगे वो आप पास करवा लेंगे। अब एक बड़े इम्पोर्टेंट इशू की तरफ हम आते हैं कि जब फर्ज किया आपका मॉलिक्यूल है कोई भी, लेट से आपका ये मेथनॉल ही है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं इसके ऊपर, तो क्या हमेशा पॉजिटिव आयन ही प्रोड्यूस होते हैं? तो आपके ख्याल में क्या इसका आंसर हो सकता है? जी सूफी हमजा, आप बता सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी आपके मेथनॉल के ऊपर, तो क्या हमेशा इसके पॉजिटिव आयन ही जनरेट होंगे या नेगेटिव भी हो सकते हैं? ये बाकी ज्वाइन करके सर ब्रेकडाउन पे डिपेंड करता है। सर ब्रेकडाउन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन जैसे कि नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, जी वो ऑब्वियसली सर जी के पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से निकालेंगे। दोनों क्योंकि positive पॉसिबिलिटी ज्यादा है attract बेटा, होते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी। यस ये सर देखें बिल्कुल। यहाँ हर जगह इलेक्ट्रॉन है, ये देखें ना, हर जगह यस सर इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सर। ठीक है। अब जब ये टकराएगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को ये नॉकआउट भी कर सकता है और ये खुद ऐड भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव, दोनों आयन बन सकते हैं। ओके, यस सर। हाँ ये यस आपने सर ध्यान रखना है कि नेगेटिव आयन भी बन ठीक सकते है। हैं, पॉजिटिव आयन भी। तो अब अगर आपने ये पीछे हम जाते हैं, अगर आपने नेगेटिव आयन को रिटेन करना है, ये पीछे हम जाते हैं, ये यहाँ पे ये, अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से सिर्फ नेगेटिव आयन आगे जाएं, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे आप कि यहाँ पे ये ट्रैप है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप है, तो इसकी जगह आप पोलैरिटी बदल देंगे। तो यहाँ पे आप जो है कौन सी प्लेट लगाएंगे कि पॉजिटिव आयन जो है वो अर्थ हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ नेगेटिव प्लेट लगा देंगे तो ऑल दी पॉजिटिव आयन जो है वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे और नेगेटिव आयन इधर को चलने जाएंगे। अच्छा, अब अगर आप, हाँ, अब अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव आयन सिर्फ आगे जाएं तो फिर क्या करेंगे, फिर आप इधर पॉजिटिव प्लेट लगा देंगे तो नेगेटिव आयन सारे इसमें अर्थ होते चले जाएंगे, तो ओनली पॉजिटिव आयन विल मूव फॉरवर्ड। तो इस तरह से ये आपके पास ऑप्शन होती है। ये जैनब आप देखें खत्म होने वाला लेक्चर है तो अब आप ज्वाइन कर रही हैं, वेरी स्ट्रेंज। आप हमेशा जो है ना नॉन सीरियस आप शो करती हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ओके, तो हाजिरी के लिए आना सिर्फ जो है ना, दिस इज नॉट द वे। ओके, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर ऑल दी यानी बोथ टाइप्स ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से आयन को आगे जाने दें एनालाइजर के अंदर, तो उसके लिए चॉइस हमारे पास है। तो इसलिए कहते हैं कि आप सिलेक्ट करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर ऑप्शन है कि आप पॉजिटिव आयन को एनालाइज करना चाहते हैं या नेगेटिव आयन, तो जौन सा भी मोड आप यूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है, ये फ्लेक्सिबिलिटी हर मशीन के अंदर मौजूद होती है। तो अब हम आगे चलते हैं कि क्वाड्रूपल जो है इसका फायदा क्या है। क्वाड्रूपल इज अ वेरी सिंपल, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन मैग्नेटिक सेक्टर जितनी नहीं होती, ये इतना हाई रेजोल्यूशन नहीं होता, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये जो क्वाड्रूपल है जिसके अंदर 4 पोल होते हैं वो कॉम्पैक्ट होता है, टेबल के ऊपर आ जाता है, सिंपल डेस्कटॉप मशीन है जिस